Welcome students to Success Series. Today we'll be taking the questions from chapter Metals and Non-Metals. I hope आप सभी अच्छे होंगे और आपकी preparations बहुत अच्छी चल रही होंगी. So let's get started. Do follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter. Let's see the first question, MCQs. Dear children, the first question is, which of the following is a liquid non-metal at room temperature? Mercury, bromine, chlorine and sulfur. इनमें से ब्रोमीन ही एक non-metal है और ये liquid भी होता है room temperature में. So the correct answer is bromine. Let's move to the next question now. Which of the following is not an ionic compound? KCl, MgCl2, CCl4 and NaCl. इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट होगा CCl4 क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है. So the answer is C part. Now children, let's move to the next question. The next question children is, Aqua regia is called as royal water because it dissolves gold. Its composition is 1:3 concentrated. So the ratio here should be A, B, C or D. A में हमारे पास है H2SO 4:HNO3, HNO3 is to H2SO4, HNO3 is to HCl और HCl is to HNO3. इनमें से करेक्ट आंसर सी पार्ट है. 1:3 के रेशियो में एक्वा रीजिया को हम बनाते हैं. 1 पोर्शन अगर HNO3 का होगा तो 3 पोर्शंस HCl के होंगे. So I hope this is clear to you children. Now let's move to the next question. Now let's see this question. Which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salt by the other 3 metals? Mg, Au, जिंक या फिर कॉपर. इसका करेक्ट आंसर बी होगा Ag, दैट इज सिल्वर, क्योंकि इन सब में से सिल्वर सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, इस वजह से सिल्वर विल बी द आंसर. नाउ डियर लर्नर्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Alloys are homogeneous mixtures of a metal with a metal or a non-metal. Which of the following alloys contain non-metal as one of its constituents? Brass, bronze, amalgam या फिर stainless steel. The correct answer to this question is D part, that is stainless steel. Stainless steel के अंदर iron और carbon भी होता है, जिसमें से carbon एक non-metal है. Therefore, the answer to this question, dear children, is stainless steel. Now let's see all the answers. You can also check children the questions. After solving them, you can just check your answers from the slide given. Now comes the assertion questions. So we know हमें assertion type के questions को students करने के लिए सारे options को carefully देखना होता है. A means both A and R, यानी आपका assertion और reasoning दोनों ही true हैं और R is the correct explanation for A. तो इसलिए हम ऑप्शन A को करेक्ट बोलेंगे. अगर A और R दोनों ट्रू है बट R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम B ऑप्शन चूज करेंगे. अगर A एज अ स्टेटमेंट इज ट्रू बट उसका जो रीजन गिवन है वो फॉल्स होगा तो C मार्क करेंगे. और अगर A इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, वी आर गोइंग टू मार्क D to it. So let's get started with the assertion reasoning type of questions. Assertion is nitrogen is a non-metal and the reason given here is nitrogen has 5 valence electrons. अगर बच्चों हम ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसमें assertion और reason दोनों ही true है, बट इसका जो reason है यानी नाइट्रोजन के पास 5 valence electrons है, ये इसका बिल्कुल भी correct explanation नहीं है. क्योंकि नॉन मेटल्स के लिए अगर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए था कि ये एक नॉन मेटल इसलिए है बिकॉज इट इज द टेंडेंसी टू gain electrons in order to complete its octet.
Now let's see the next question. Assertion is zinc oxide is amphoteric in nature. Reason given is that zinc oxide reacts with both acids and bases. ये बिल्कुल सही reason है, इसलिए A part is correct. Now let's see the next slide. So now we'll tackle very short type answer questions. So now let's see. This is a question. Why does metal does not release hydrogen gas when reacting with nitric acid and that too in the dilute form? इसका आंसर स्टूडेंट्स ये होगा कि निट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस जो रिलीज आउट होती है वो वाटर में चेंज हो जाती है, और जो हम निट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो उसका रिडक्शन होके वो या तो N2O या फिर NO2 या फिर NO में चेंज हो जाती है. So learners, let's move to the next question now. The question is, why is copper used to make hot water tanks whereas steel is not? So children, अगर हम कॉपर के बारे में बात करते हैं तो एक कॉपर अच्छा हीट कंडक्टर होता है एज कंपेयर टू स्टील, जिसकी वजह से जनरली हम हॉट वाटर टैंकर्स को कॉपर से बनाते हैं, जिससे बाय द फिनोमिनन ऑफ कंडक्शन वो ज़्यादा टाइम तक के लिए उसके अंदर जो वाटर स्टोर किया जाए वो हॉट रहे. So now let's move to the next slide. Why do the non-metals not displace hydrogen from dilute acids? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल्स एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के. वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज आउट नहीं कर पाते. दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन आयंस, जिसकी वजह से नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर पाते हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से. Now let's move to the next question. Give an example of a metal which. So एक ऐसे मेटल का हम नाम बताएंगे जिसको हम नाइफ से बड़े आराम से काट पाए. So the correct answer will be sodium. It can be cut using a knife very easily. Moving to the second part now. Is a liquid at room temperature? तो mercury एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के अंदर. So the correct answer here children is mercury. So now children हम देखते हैं किस तरीके से हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं. So like we have to name the following. तो इसमें हमें वर्ड आंसर लिखना होता है. So a metal which is preserved in kerosene. So ऐसा मेटल है सोडियम. Sodium is preserved in kerosene. A lustrous colored non-metal. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है. लस्ट्रस मतलब जो शाइन देता है. नेक्स्ट, अ मेटल विच कैन मेल्ट वाइल केप्ट ऑन पाम. तो ऐसे आप या तो आप गैलियम लिख सकते हैं या फिर आप सीजियम लिख सकते हैं. ये दोनों ही ऐसे मेटल्स होते हैं विच कैन मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम. अ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसमें आप लेड यानी Pb और मर्करी यानी Hg, ये दो एलिमेंट्स मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. इसके अलावा भी अगर चिल्ड्रन आप कोई करेक्ट आंसर देंगे तो यू विल गेट द मार्क्स. नाउ लेट्स मूव अहेड. So these were your answers. Any correct answer apart from this, if correct, will be given marks. Now children, let's see this question. Define amphoteric oxides. Give two examples of such oxides. Amphoteric oxides children हम उनको बोलते हैं जो मेटल ऑक्साइड्स एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करें, जिनका बिहेवियर एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो. ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जब हम एसिड्स या बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये सॉल्ट और वाटर देती हैं एज अ प्रोडक्ट. जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो HCl से रिएक्ट करने पे ये एक सॉल्ट और वाटर देती है. लाइकवाइज एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन ऑल्सो रिएक्ट विद अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर अगेन. सो
Aluminum oxide, dear children, is an example of an amphoteric oxide. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रॉम द बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. Give reason for the following. Sodium is immersed in kerosene. So इसका आंसर ये होगा कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो कि बहुत ही जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर सकता है. तो इसलिए हम सेफ्टी एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन इसे केरोसिन के अंदर इमर्स करके रखते हैं. Next question is, blue color of copper sulfate solution disappears when some aluminum powder is added in it. So children, let's see its solution. तो जब भी हम एल्यूमिनियम पाउडर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देते हैं तो ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का होता है इट गेट्स डिसअपियर्ड. So, since aluminium is more reactive than copper, aluminium ज़्यादा reactive होता है copper से, तो वो उसे displace कर देता है. So, it displaces copper from copper sulfate solution और जो resultant हमें product के रूप में मिलता है वो होता है aluminium sulfate, जो कि एक colorless compound है, जिसके वजह से जो copper sulfate aluminium के साथ react करके जो colorless compound बनाता है वो पूरे रिएक्शन को जो पीपीटी कंपाउंड देगा उसका कलर वो कलरलेस कर देगा, यानी वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी अ क्वेश्चन. अ थिन zinc plate was kept in a glass container having copper sulfate solution, and examining it, it was found that the blue color of the solution is getting lighter and lighter. After a few days, when zinc plate was taken out of the solution, a number of small holes were noticed in it. State the reason and write the chemical equation. So अगर हम देखें, अगर हम zinc plus copper sulfate को रिएक्ट करवाएं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलेगा. जिंक काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले, तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इस वजह से हमें एक कलरलेस कंपाउंड मिलेगा व्हिच इज जिंक सल्फेट. So here is the reasoning that we should give, that the blue color of the copper sulfate solution, it fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution. So जैसे मैंने अभी आपको बताया कि zinc is more reactive than copper, so it is going to displace it, and the product that we will get will be zinc sulfate, which is a colorless solution. So this will be the reaction. Also zinc जो metal हमारे पास होता है it is consumed, और जिस वजह से हमें बहुत छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं जिंक स्ट्रिप के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर चिल्ड्रन. रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. हमें इसी रिएक्शन को देखना होगा, समझाना होगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते और क्या रीजन है इसके पीछे. ये इस रिएक्शन को हम रिवर्स इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम इसमें जिंक सल्फेट प्लस कॉपर डालेंगे तो नो रिएक्शन होगा, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से. सो कॉपर तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, जिस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. So we can say that copper is less reactive than zinc in the reactivity series. Therefore, this reaction is not possible. So children, let's move to the next slide now. Now children, let's see the next slide. List 4 important properties of aluminium which are responsible for its great demand in industry. हम एल्यूमिनियम को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली मानते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. ये एक लाइट मेटल है और इसमें करोजन इतने आराम से नहीं होता. करोजन बहुत ही कम चांसेस होते हैं और ये जनरली नहीं ही होता है क्योंकि इसमें एक आउटर
प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो इसको फर्दर कोरोजन से बचाने में काफी हेल्पफुल होती है. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now children, let's see some more other uses of aluminium. So aluminium एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. ऑल्सो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से हम बहुत सारे अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके ऑक्साइड से. So now children, let's move to the next slide. The next question is, a metal M is found in nature as its carbonate. It is used in the galvanization of iron. Identify M and name its ore. How will you convert this ore into free metal? यहाँ पे अगर हम देखें, हमें एक बहुत अच्छी हिंट दी गई है क्वेश्चन में कि इट इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, यानी हम जिंक मेटल के बारे में बात कर रहे हैं. सो M, अननोन एलिमेंट, इज ऑफ जिंक. ऑल्सो जिंक occurs as zinc carbonate, and the ore it is present in is calamine ore, whose formula is zinc carbonate. Zinc can be extracted from the ore by the process that we are going to discuss now. जब हम जिंक कार्बोनेट को लेते हैं तो हम कैलमाइन ओर के अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ऑल्सो जो ये हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है, इसको थर्स हम कोक के साथ रिएक्ट करवा के जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट इजिली कर पाते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस अंडर विच वी कैन एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम द कैलमाइन ओर. Now children, let's move to question number 8. Write down the important properties of ionic compounds. Ionic compounds generally बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स. इनके अंदर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिबिलिटी रखते हैं वाटर के अंदर. ऑल्सो ये इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन ऑयल, अल्कोहल्स वगैरह में. मोल्टन स्टेट और इनके जो एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. Now students, we are going to do questions which carry 5 marks. So let's get started with long type of question. So draw a flow chart diagram to show extraction of metals of medium reactivity from sulfide ores. अगर हमारे पास सल्फाइड ओर्स होते हैं तो हम इस तरीके से जो हमारा ओर होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करके उसे हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली डिमार्केट कर देते हैं. यहाँ पे लो रिएक्टिविटी के बारे में नहीं, हाई रिएक्टिविटी के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में बोला गया है, और वो भी सल्फाइड ओर्स के लिए. सो हम मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के सल्फाइड ओर्स को रोस्ट करते हैं. मींस रोस्टिंग प्रोसेस यूज करके हम उनके ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस करके उनको प्यूरिफाई या फिर रिफाइन करके मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं. सो दिस प्रोसेस वील हैव टू draw it in a flow chart. Now let's move to the next slide, dear children. Now let's see the difference between roasting and calcination. जब हम calcination के बारे में बात करते हैं, calcination हम कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं in absence of air, और फिर वो कार्बोनेट ओर मेटल का मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, वी आर देन एबल टू गेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ रोस्टिंग. रोस्टिंग हम सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं, जिसमें हम ओर को हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में. जैसे ये जिंक सल्फाइड है, हमने इसी ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट किया
हीट करने के बाद हमें जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट आउट हुई. So this is an example of roasting which is done for sulfide ores only. Now we have another question. We have to show the formation of magnesium chloride and sodium chloride by transfer of electrons. We have to identify the ions present in these compounds, and we also have to state why ionic compounds do not conduct electricity in solid state. अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब हम मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो नाउ लेट्स ट्राई टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट्स सी चिल्ड्रन. अगर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हम मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेता है, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Mg2 पॉजिटिव आयन बना लेता है. क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है. सो वी कैन से दैट जब ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसे ही क्लोरीन ने गेन कर लिया, तो कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड. लाइकवाइज मैग्नीशियम के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन आयन को देगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को देगा. सो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड. नाउ चिल्ड्रन, जो हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं उसमें 1 सोडियम आयन होता है और 1 क्लोराइड आयन, और जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं तो उसमें 1 मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन्स होते हैं. जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो सॉलिड स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो काफी रिजिड होते हैं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी हाई होती हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. Metals extracted from their ores are not very pure. They contain impurities which can be removed by the process of refining. Now, according to this, we have to name the most widely used process of refining impure metals. And we have to draw the diagram of the apparatus that we are going to use for refining the copper metal. So here, यहाँ पे ये इस तरीके से हमें rods को दिखाना होगा डायग्राम में, which is cathode and anode. हमें एक स्ट्रिप हम प्योर कॉपर मेटल की लेते हैं और एक स्ट्रिप हम इम्प्योर कॉपर मेटल की लेते हैं. जब हम रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे करवाते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन के चलते जो इम्प्योर मेटल है वो रिफाइन होता है. सो नाउ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस we have to tell, and we should also be able to tell that what would happen to the pure metal when current passes through the electrolyte, and what happens to the soluble and insoluble impurities present in the impure copper. अगर हम यहाँ पे प्योर कॉपर मेटल लेते हैं और इम्प्योर कॉपर मेटल लेते हैं, और जब हम इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की वजह से यहाँ पे कॉपर की जो इम्प्योर कॉपर मेटल है वो इम्प्योरिटीज में चेंज होके एज इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड डिपॉजिट हो जाता है कंटेनर के लोअर पार्ट में. सो हियर वी आर टेकिंग अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एज द कैथोड, और इम्प्योर मेटल जो हमारे पास होता है उसे हम एनोड बनाते हैं. जो एक्वा सोल्यूशन होता है सॉल्ट का, उसको हम मेटल की रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं. जितना भी इक्विवेलेंट अमाउंट कॉपर मेटल का
हमें इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है वो सारा का सारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है कैथोड के ऊपर, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी कैन कलेक्ट इट। जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो सोल्यूशन के डाउन बॉटम ऑफ द कंटेनर में डिपॉजिट हो जाती है, जिसका नाम हम एनोड मड बोलते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। You are given samples of 3 metals, sodium, magnesium and copper. हमें इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है जिससे इनका ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी पोर्ट्रे हो पाए। तो इस वजह से इसको दिखाने के लिए हमें कोई भी 2 एक्टिविटीज को सजेस्ट करना है। इसको सजेस्ट करने के लिए फर्स्ट एक्टिविटी जो हम यूज कर सकते हैं, लेट्स सी दैट इन डिटेल। When 3 metals, sodium, magnesium and copper are added to magnesium chloride solution separately taken in 3 different test tubes, हम देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करवाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे और कॉपर के साथ करवाएंगे तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो रिएक्शन। Why there will be no reaction is because magnesium अपने ही salt को displace नहीं कर पाएगा, और magnesium बहुत ज़्यादा reactive होता है copper से, तो वो उसे बड़े आराम से displace कर पाएगा। इसी वजह से we can use this activity. This would show that sodium is most reactive metal as it displaces magnesium from magnesium chloride solution. Sodium thus is verified that it is more reactive than magnesium. Activity 2 students that we can also use is जब भी हम सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर के मेटल्स को 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में लेते हैं और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जिसमें जो कॉपर सल्फेट है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, और अगर हम मैग्नीशियम के साथ भी करें और सोडियम के साथ भी करें, दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है, बट कॉपर के साथ कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। दिस सजेस्ट्स कि अगर हम कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, और सोडियम, एज वी हैव डन इट फ्रॉम द फर्स्ट एक्टिविटी, सोडियम most reactive होगा। Thank you dear learners. I hope you enjoyed the session. Dear children, do subscribe to our YouTube channel and stay in for more updates. Thank you.